اس کے ساتھ ساتھ میں دعوت دوں گا سینئر ممبر آف آل پاکستان برڈ بریڈر ایسوسی ایشن توفیق خان بھائی. اللہ کریم کرم کے سائے میں رکھیں انشاءاللہ جی. ہماری کوشش صرف یہ ہے کہ آپ سب بھائیوں سے ماشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ہمارا اظہار خیال بھی ہو اور آپ سب بھائیوں کی امپورٹنٹ رائے بھی آئے, سب کا ویو بھی آ جائے. تھوڑا سا ٹائم شارٹ ہے لیکن میں ایکچولی سب بھائیوں کے علم میں آل پاکستان برڈ بریڈرز ایسوسی ایشن کی فیوچر اسٹریٹجی تھوڑی بہت ڈسکس کروں گا اور ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے تمام گروپس کے اندر ہمارے 70,000 کے قریب فینسیئرز ہیں الحمدللہ, تمام ایڈمنس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس بھی کریں گے. یونٹی اور سولیڈیرٹی کے ساتھ اس کو اچیو کرنے کے لیے اپنا بہترین رول پلے کریں گے. یہاں پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ آل پاکستان برڈ بریڈرز ایسوسی ایشن ماشاءاللہ ایک وہ آرگنائزیشن ہے جس کے الحمدللہ 1650 کے قریب جو ہے وہ ممبرز ہو گئے ہیں, جو کہ پاکستان کے پورٹبل سے الحمدللہ یہ سب آفائیوں کی موقع ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات اس کے اندر میں یہ کہوں گا کہ یہ سوسائٹیز جتنی بھی ماشاءاللہ کلب سوسائٹیز کی الحمدللہ مینجمنٹ کمیٹی ہے وہ الحمدللہ ہم سے محبت بھی کرتے ہیں اور ہم بہت کلوز ہوتے ہیں ان سے ہر ڈسکشن میں, ہر چیزوں میں, کہ ہر ایونٹس کو پروموٹ کرنے میں, کہ ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرنے میں, اور اسی طرح یہ ایگریکلچر بہتر ہوگا یونٹی اور سولیڈیرٹی کے ساتھ. تو کچھ 9 پوائنٹس ہیں ہمارے ذہن میں انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس کو ہم آگے اور آپ سب بھائیوں کے تعاون سے انشاءاللہ اور اس کو بہتر کریں گے کہ کس طرح ان چیزوں کو ہم نے اچیو کرنا ہے. آج کے دن سے اگر ایگریکلچر یہاں آیا ہے جی تو یہ ان تمام کلب سوسائٹیز اور جیسے میں نے کہا یوٹیوبرز الحمدللہ رسپیکٹڈ ایڈمنس تمام واٹس ایپ گروپس تقریباً 700-750 تو میرے علم میں ہے, لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ پتہ نہیں کتنی کوانٹٹی ہوگی. تقریباً 700 گروپس کے اندر جو ہے وہ میں الحمدللہ ممبر ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 700 گروپ کا مطلب ہے اگر ایوریج ہم یوں رکھ لیں کہ یار 600-700 کے قریب لوگ ایسوسیٹیڈ ہیں تو ہم لوگ یار کیوں نہیں یونائٹڈ ہو سکتے؟ ہم کیسے ایک پلیٹ فارم پہ آ کے کوئی ایکٹیویٹی کو پروموٹ نہیں کر سکتے؟ تو آل پاکستان برڈ بریڈرز ایسوسی ایشن کا بیسک آبجیکٹو سوشل ہے, سوشل. یہاں پہ ہمارا کبھی بھی ہم نے اپنی ایوریج کی پروموشن نہیں کی, کبھی بھی ہم نے اپنی ایکٹیویٹیز کی پروموشن نہیں کی. الحمدللہ ہماری کوشش ہمیشہ سے ایک ہی رہی ہے کہ تمام فینسیئرز کی چیزوں کو پروموٹ کیا جائے, ان کی ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کیا جائے, نئے فینسیئرز کو بہترین راہیں دکھائی جائیں اور بہترین گائیڈ لائنز اویلیبل کی جائیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کوششیں آپ سب بھائیوں کے تعاون سے قائم ہو جائیں گی. تو ہمارا پہلا ایجنڈا ہے نیو ایکسپورٹ مارکیٹ کو تلاش کرنا. اب یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ یار ٹریڈرز کا بائیکاٹ کیا جائے, ایکسپورٹرز کا بائیکاٹ کیا جائے. اگر یہ سب ہم کریں گے تو یہ ایکسپورٹ مارکیٹ جی کون تلاش کرے گا؟ جو گورنمنٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ آرگنائزیشنز رجسٹرڈ ہیں وہی امپورٹ کر سکتی ہیں, وہی ایکسپورٹ کر سکتی ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ کام ہمارا کیا ہونا چاہیے کہ ہم نے ان کو گائیڈ کرنا ہے کہ کیا امپورٹ کرنا چاہیے, کیا ایکسپورٹ کرنا چاہیے. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس کے لیے ہم سب کو مل جل کے ایک پلان بنانا چاہیے کہ یار فیوچر جو ہے ان برڈس کے اوپر جو ہے وہ ایکسپورٹ کی مارکیٹ موجود ہے. ان برڈس کے اوپر ہم سب بھائیوں نے مل کے جو ہے وہ اپنی پلاننگز کرنی ہے. ان کے اوپر ہم نے اپنی میوٹیشنز کی بہترین گائیڈ لائن جو ہے وہ فراہم کرنی ہے. اور ایک کوئی بھی چیز آج کے دن اچیو نہیں ہوگی جی, اس کے اوپر جب اسٹارٹ کیا جائے گا تو 2 سے 3 سال کا عرصہ لگے گا. جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوالٹی کی برڈ کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ لوگ جو ہے وہ اتنا ٹائم لے ہی لیتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب کوالٹی کی برڈ ہوگی, جس طرح ALP کا شو ہو رہا ہے, پیک کا شو ہو رہا ہے, LSP کا شو آنے والا ہے کوئٹہ کے اندر, ان شوز کے اندر وہ شوکیز ہوگی تو دنیا اس کو دیکھے گی. جب دنیا دیکھے گی تو ان فینسیئرز سے رابطے میں آئے گی. ان فینسیئرز سے جب وہ کوآرڈینیٹ کرے گی تو ان فینسیئرز کی برڈ جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوں گی. ایکسپورٹ جی کوئی ایکسپورٹر نہیں کر سکتا, اس کے لیے ہم تمام فینسیئرز کو ایکسپورٹرز کے ساتھ مل کے کوآرڈینیشن کر کے جین کر کے ان کی بھی پرابلم سمجھنا ہے, اور اس کے بعد جی یہ چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ممکن ہوگی. تو الحمدللہ یہ کوششیں جاری رہیں گی. نیو ہابیز فینسیئرز کو برڈ فارمنگ کی طرف لانا اور ان کے پروفائلز کو اجاگر کرنا. جہاں پہ ہماری ہر انڈیویجول کی کوشش یہ ہوتی ہے
कि यार वो अपने प्रोफाइल्स को डेवलप करें, अपनी एफबी पे काम करें। कभी दूसरे की बर्ड के ऊपर मैं बहुत कम ही लाइक्स देखता हूँ, बहुत कम ही हार्ट देखता हूँ। ये चीज़ जो है ना वो हमने डेवलप करनी है। जब हमने एक भाई को अपनी बर्ड्स दी है और उनके पास माशाल्लाह प्रोडक्शन आई है, तो कम से कम हम इतना तो कर लें कि अपनी ब्रीडिंग लाइन को कम से कम अप्रिशिएट करें। और सिर्फ ये नहीं कि बस अपनी बर्ड लगा के अपनी बर्ड और भाइयों को देना स्टार्ट करें। वो जब आपके पास आए हैं तो उनके प्रोफाइल को आपने ही कैरी करना है, ऊपर लेके चलना है इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से, क्योंकि वो आपकी तरफ देख रहे होते हैं गाइडलाइंस के लिए। आपकी गाइडलाइंस के साथ ही वो अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर आ जाते हैं। जब वो मजबूत होंगे तो इंशाल्लाह ताला यही गाइडलाइंस, जैसे आज के दिन में अगर 100 लोगों को दे रहा हूँ तो इंशाल्लाह अब आगे से 10 लोग मिलकर वो 1000 लोगों को पास ऑन कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला। ये कोई एक इंडिविजुअल का काम, कोई एक ऑल पाकिस्तान बर्ड ब्रीडर्स एसोसिएशन का काम नहीं है। ये तमाम सोसाइटीज के बाद फैंसियर्स का काम है। फैंसियर्स सोसाइटीज को बोलते हैं आपने आज तक क्या किया। मैं फैंसियर्स से ये सवाल जरूर करूंगा क्योंकि उनकी आगाही नहीं है। मैं इनसे ये कहता हूँ कि यार आपने एग्रीकल्चर के लिए क्या किया, ये आप आके बताएं और इसको प्रमोट करें अपने सोशल मीडिया पे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ नहीं कर रहे, मैं ये बिल्कुल नहीं समझता। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, बहुत चीज़ों को देखता हूँ। मैं सिर्फ ये कि आप लोगों से अर्ज करता हूँ कि आप आएँ, सिर्फ अपनी बर्ड्स नहीं लगाएं, उस बर्ड्स की पेयरिंग भी समझाएं, उसकी रोटेशन भी बचाएं, उससे क्या आगे ब्रीड आनी है वो भी बताएं, फ्यूचर पेयरिंग्स क्या है वो भी बताएं। ये सिर्फ कुछ सीनियर फैंसियर्स का ही काम नहीं है। जब मैसेज और ओवर पाकिस्तान से बाहर जाके इंटरनेशनल लेवल पे जाना है तो ये कोई 1 2 4 लोग नहीं कर सकते और आप फिर उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं और उनको सपोर्ट भी नहीं कर रहे होते तो ये कोशिशें कर रहे हैं। तो आपका काम क्या होना चाहिए, अप्रिशिएट करें हर कम्युनिटी को इंशाल्लाह ताला। और सीनियर फैंसियर्स की जो राह है, हम भी आज के दिन और पाकिस्तान बर्ड ब्रीडर्स एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास और ओवर पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे यूएई यूके में ऐसे माशाल्लाह हमारे कमेटी मेंबर्स मौजूद हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह 40 से 45 साल का वसी तजुर्बा रखते हैं। हमारे मेहताब भाई हैं लाहौर के अंदर, आप लोगों ने भी सुना था इस इवेंट से पहले, वो तशरीफ नहीं ला सके, 50 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं। हमारे अकबर जलील साहब हैं, 45 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं। 38 साल मुझे हो गए। डॉक्टर सऊद साहब यहाँ पे मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी 87 88 से मैं इनको देख रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रीट करवा रहे हैं बर्ड्स को। और माशाल्लाह आप तमाम भाई, अब अगर कोई भी एक इंडिविजुअल 1 साल 2 साल 3 साल में आके वो यार ऐसे पॉइंट आउट करता है कि यार इन लोगों ने कुछ नहीं किया, यार हम लोगों ने तो अपनी जिंदगियां दे दी इस एग्रीकल्चर को, अब आपका टाइम है, हम आपके लिए अवेलेबल हैं, आप आगे आए, जिस प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, आप तनकीद ना करें, आप किसी को भी तनकीद ना करें। हम हमारे दिल आप सब भाइयों के लिए खुले हैं, जैसे कि आप सब देखते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह ताला आपकी कोशिश यही होनी चाहिए पॉजिटिविटी बढ़ाना। पॉजिटिविटी जितनी बढ़ेगी नया फैंसियर फील्ड के अंदर आएगा। मेरी आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट ये है कि पॉजिटिविटी बढ़ाएंगे और नए हॉबीज को फैंसियर्स को इंशाअल्लाह ताला सब भाई मिलजुल के प्रमोट करने में अपना बेहतरीन रोल प्ले करेंगे। लेकिन आपका टाइम भी चाहिए सर। अगर मैं आज 18 घंटे अपने 40 ग्रुपों को देता हूँ तो आप भी यार कम से कम मेरी उस वॉइस के ऊपर एक हार्ट भी नहीं लगाते। मतलब कोई वॉइस करना तो दूर की बात है, मतलब उसके ऊपर आके मैं देखता हूँ 5 से 6 8 लोग होते हैं जो कि एक्टिव होते हैं और फिर कहते हैं यार कुछ भी नहीं किया गया। मैं ये कहता हूँ अगर मेरी वॉइस गलत थी, मैंने कोई खराब गाइडलाइन दी थी, आप आके उसको अप्रिशिएट करें। मेरी तरफ से आपको अलाउ है तमाम ग्रुप्स के अंदर आप आए और उसके अंदर अपने कमेंट्स करें कि सर ये बोलना रह गया था, आप ये बोल रहे थे, ये कवर कर लेते तो ये चीज़ और बेहतर हो जाती। तो यार मेरी लर्निंग बढ़ती, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ये मैं अपना नाम लेके इसलिए कह रहा हूँ कि हम तमाम एडमिन्स माशाल्लाह दिन रात लगाते हैं जी अपने ग्रुप्स के अंदर, उनको अप्रिशिएट करें। इसी तरह सोशल मीडिया के अंदर जो लोग हैं उनको भी अप्रिशिएट करें और अपने सोशल मीडिया के चैनल्स भी डेवलप करते रहें। साथ साथ जितने चैनल्स डेवलप होंगे ज़्यादा आगे लोगों के पास मैसेजेस जाएगा। न्यू फैंसियर को मेरा सिर्फ एक ही पैगाम है जी कि आपने कोशिश करके अपने प्रोफाइल को तो डेवलप करना है लेकिन किसी के प्रोफाइल को नहीं गिराएं, बर्ड्स को प्रमोट करने की कोशिश करें बस इंशाअल्लाह ताला। गवर्नमेंट से बर्ड फार्मिंग के लिए पॉसिबल बेनिफिट्स हासिल करने हैं हमें और एक्सपोर्ट के चैलेंजेस दूर करवाने हैं। अच्छा इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो जैसे कि हमारे भाइयों ने कवर भी की माशाल्लाह, डॉक्टर सऊद साहब, पाशा भाई, अदनान यूनुस भाई, अब्दुल हक भाई, आबिद हराई भाई और माशाल्लाह हमारे
तमाम सोसाइटीज क्लब्स के साथ इंशाल्लाह इसके साथ बैठेंगे अल्लाह करीम के करम से। और ये कोई APBTA का काम नहीं होगा, ये तमाम क्लब सोसाइटीज का अल्हम्दुलिल्लाह काम होगा, क्योंकि मिलकर हम जब एक दूसरे के साथ बाजू बनेंगे। मैं एक नाम भूल गया हूँ, मुमताज़ साहब का, उनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मेरे मुमताज़ भाई अभी मुझे लग रहा है बहुत सब भाइयों के नाम भूल गया हूँ, तो इंशाल्लाह वसीम भाई, तारिक शफी भाई, कौफी शाहिद भाई और बाकी सब भाइयों के साथ इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिसमें कोई ये ना सोचे कि यार ये APBTA के लिए, ये सर बर्ड्स सेव द बर्ड्स हॉबी एंड एग्रीकल्चर के लिए, ये तमाम सोसाइटीज इस विंडो के नीचे आ जाए। APBTA अगर कोई समझती है कि यार हम ये काम करना चाह रहे हैं, पहल करना चाह रहे हैं, APBTA उनके साथ शामिल होने में कोई उसको मसला नहीं है। लेकिन सेव द बर्ड्स हॉबी एंड एग्रीकल्चर बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमने गवर्नमेंट लेवल पे जाना है। हर इंडिविजुअल के पास बिजनेस प्लान होने चाहिए, अपनी कोशिशें होनी चाहिए, और पाकिस्तान बर्ड ब्रीडर्स एसोसिएशन की विंडो यूज में हेल्पफुल हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे पास डेटा मौजूद है अल्लाह करीम के करम से। ये वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जिसको लोगों ने CNIC दिए अपने, लोग प्रॉपर्टी के लिए नहीं देते तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास किया है, ये अपने CNIC प्रोवाइड किए अल्लाह करीम के करम से। तो ये अल्लाह करीम का जितना शुक्र अदा करने का काम है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि 1600 को हमने एक्चुअली जो है ना वो अगर 16,000 हो जाएंगे तो और हेल्पआउट हो जाएगा, और 1,60,000 हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आप सब इस कारोबार के अंदर शामिल हो जाएंगे। और जैसे कि मैंने कहा ये तमाम क्लब सोसाइटीज़ की ऑर्गेनाइजेशन है, आपके मशवरे से ही चलती है, और इंशाल्लाह ताला ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे कोई भी इसका चेयरमैन नहीं है, कोई भी इसका जनरल सेक्रेटरी नहीं है यहाँ पे, इसीलिए इसको कोर कमेटी रखी गई है, क्योंकि कुछ डिसीजंस जाहिर बात है 1600 लोगों से तो हम मशवरा करते हैं, लेकिन ओवरऑल एक लेवल पे आके हमने कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, जिसमें कुछ हमारे यंग ब्लड भी होता है, कुछ हमारा सीनियर ब्लड भी होता है, ताकि हर तरह की चीज़ें जो है वो इस कोर में शामिल आ जाए। आप ये कोर में देखेंगे तो ये यंग से लेके सीनियर्स तक का एक मजमूरा है, और ये ओपन है जी सबके लिए। और मैं यहाँ पे खड़ा होकर ये कहता हूँ कि जैसे मैं कोर मेंबर हूँ, मैं मेंबर होने को तरजीह दूंगा, ताकि मैं मेंबर बन के कोर से पूछ सकूँ आपने क्या क्या काम अभी तक नहीं किए, आपने अभी तक अपने ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं किए। आप लोगों को मेरा मैसेज मिल गया है, ये किसी की जागीर नहीं है, ये सिर्फ एग्रीकल्चर को फरोग करने के लिए है और तमाम मेंबर्स के लिए है। इस कोर के अंदर जो टाइम दे सकते हैं वो कमेटी से निकल के कोर में आते हैं, मेंबर्स से निकल के जैसे माशाल्लाह यहाँ कमेटी में आते हैं, इंतजाम संभालते हैं, चीज़ें संभालते हैं, और अल्लाह करीम के करम से तमाम क्लब सोसाइटीज़ के साथ हम मिल के आगे चलने की अपनी कोशिशें करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है जी इस फेज के अंदर यूनिटी, सॉलिडारिटी, इसमें इसको लेके चलना है। अगर हम ये नहीं कर सकेंगे तो फिर मैं वही 2006 से 2010 वाला एक सिचुएशन देख रहा हूँ एग्रीकल्चर में, जहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस उस वक्त भी आया था, और फिर ये 11-12 के बाद जो है ना ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सब भाइयों की अथक मेहनतों से भी ये आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हुई। तो यही बैच इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशंस टफ है, अभी इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ने कम किया है, 4% का डिक्लाइन आया है अल्हम्दुलिल्लाह, इससे बिजनेस इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी इंशाल्लाह ताला। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म होगी, जब अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट्स कंट्रोल में आएंगे, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह करीम के करम से एग्रीकल्चर में भी आगे बढ़ना है, क्योंकि बेसिकली ये हॉबी है, हॉबी के बाद ये पार्ट टाइम बिजनेस बनता है। और जो भाई इसको बिजनेस की तरह करना चाहता है वो जी आधा घंटा लगा के इसको एज अ बिजनेस एक्टिविटी ना समझे। बिजनेस एक्टिविटी के लिए तो हम 22 आवर्स तक सोच रहे होते हैं और 2 घंटे सोते हैं, 22 घंटे हम अपने बिजनेस पे लगाते हैं, तवज्जो देते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो ये सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अचीव होती हैं। तो बिजनेस अगर करना है तो फिर बिजनेस की तरह करें, बेहतरीन बिजनेस है मेरी नज़र में। मैं 88 से इसको एंजॉय कर रहा हूँ जी, हर बर्ड वैरायटी में काम करें इंशाल्लाह ताला, अल्लाह करीम के करम से कहीं भी नहीं जा रही थी ये एग्रीकल्चर। सिर्फ थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप करें और यूट्यूबर्स को इस तरह इसको प्रमोट करना है कि भाई ये प्रमोशन हो। जैसे कहा कि यार जाल रेट को तो हम आगे बताते हैं, तो एक्चुअली देखिए जाल रेट क्या है, जाल रेट वो है यार जो बायर है वो अपना रेट दे रहा है। आपके पास कोई बायर आ रहा है समझे वो जाल वाले, आप अपने बायर को अपना सेलिंग रेट बताते हैं ना, तो यार आप अपने सेलिंग रेट्स को क्यों नहीं प्रमोट करते? आप आए एक सेलिंग रेट बताएं, आपको देख के आपकी क्वालिटी की बर्ड्स को देख के सेम क्वालिटी की बर्ड्स को देख के दूसरा आदमी की जो है ना वो एक्चुअली अपने रेट्स बताएगा, तो इसी तरह मार्केट बनती है। क्वालिटी बर्ड्स मार्केट के अंदर नहीं बिकती थी, क्वालिटी बर्ड्स ब्रीडर्स के पास होती है। आपने क्वालिटी बिल्डर बनना है और अपनी बर्ड्स
बनाना है उस बर्ड को, ना कि अपनी एवरेज को। हम 4 लाख अगर फैंसियर हैं तो वो अपनी एवरेज को तो ब्रांड बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन अपनी बर्ड्स को ब्रांड बनाना है। क्रिमिनो एक ब्रांड है, बिल फेलो एक ब्रांड है, पार्टू एक ब्रांड है। इस ब्रांड को लेके तमाम फैंसियर्स को इस ब्रांड को प्रमोट करना है, जो कि ये शोज में आप देखते हैं ये होता है। तमाम वैरायटी ऑफ बर्ड्स वहाँ पे होती हैं और उसको एक ब्रांड बनाया जाता है। तो जो भी लोग ये समझते हैं कि यार ये शोज से किसी को फायदा नहीं होता, मैं कमेंट देखता हूँ हर इंडिविजुअल के, एक्चुअली वो पार्टिसिपेट भी नहीं करते। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि यार अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो फिर कमेंट भी ना करें। जब आएंगे हमारे साथ बैठेंगे उन शोज के अंदर शामिल होंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको खुद समझ में आएगा कि यार क्वालिटी बर्ड्स क्या होती हैं, आपके अंदर भी जज्बा आएगा और आप अपनी बर्ड्स को उन क्वालिटी के लेवल पे ला सकेंगे, ताकि शो क्लास बर्ड्स आप भाइयों को अवेलेबल करें और वहीं से ही एक्सपोर्ट होंगी। एक्सपोर्ट के लिए भी क्वालिटी चाहिए। अगर मुझे कंपटीशन इंटरनेशनल लेवल पे करना है तो मुझे बताना है कि पाकिस्तान की बर्ड एक क्वालिटी बर्ड है, तो ये शोज वो बताते हैं, वो चीजें बताते हैं दुनिया को कि देखिए हमारे पास कितनी क्वालिटी की बर्ड तमाम वैरायटी में अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड हो रही है। तो ये जी थोड़ी बहुत चीजें हैं बर्ड्स फार्मिंग के। बेहतरीन गाइडेंस ऑब्वियसली सब भाई माशाल्लाह प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें मैं डिटेल में नहीं कहूँगा, ग्रुप्स में हम सब अवेलेबल होते हैं आप सबके लिए बेहतरीन एक्सपर्टीज देने के लिए। बस वही रिक्वेस्ट ये जरूर होगी कि कुछ एक थिंक टैंक अल्हम्दुलिल्लाह बन जाए, वैसे तो मौजूद है लेकिन फिर भी कुछ ऐसा थिंक टैंक बन जाए जो वैरायटी ऑफ बर्ड्स फार्मिंग के ऊपर एसओपीज को डेवलप करके स्टैंडर्ड एसओपीज हम डेवलप कर सकें और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिन प्रोडक्ट्स को हम इस तरह डेमोक्रेट के तौर पर भी प्रेजेंट कर सकें हर इंडिविजुअल के लिए कि यार ये चीज भी यूं दी जा सकती है, ये चीज यूं दी जा सकती है। अच्छा ये वाला कैल्शियम दे रहे हैं तो इसके साथ हमें सीड मिक्स का रेशो क्या रखना है, फिर अगर ये वाला कैल्शियम दे रहे हैं तो उसके साथ हमें सीड मिक्स के रेशो को क्या रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। तो ये कुछ एसओपीज के ऊपर इंशाल्लाह मिलजुल के काम करेंगे और पाकिस्तान बर्ड ब्रीडर्स एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म में यूनिटी और सॉलिडरिटी पे बहुत सारी बात हो गई है, तो मैं इंशाल्लाह ताला इस पे अब थोड़ा सा अपना टाइम सेव करूंगा। यूनिटी सॉलिडरिटी वो चीज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने दिल में तमाम भाइयों को ऐसी जगह दी हुई है जैसे वो हमारे भाई हैं। आप सब यहाँ बैठे हुए हैं तो मेरे दिल में हैं, और अगर मैं आपके दिल में नहीं हूँ तो आप मुझे पर्सनल में आए मुझसे बात करें, ग्रुप में आके किसी की टांग ना खींचे मजमे के अंदर, पर्सनल में आए आप अपने डिस्कशन बताएं भाई आपकी ये बात मुझे समझ में नहीं आती। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है आज तक मेरे बारे में या मेरे से तो किसी को कोई चैलेंज नहीं हुआ, लेकिन मैं जनरली ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई उसके साथ पर्सनल में आके बैठे चाय का कप पिए, दीन हमें कहता है दिल मिलाते हैं और हम जो है वो सब भाइयों के दिल मिलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जी के करम से नाम की वजह और आप सब भाइयों ने भी एक दूसरे से ऐसे दिल मिलाने हैं कि अल्लाह करीम की तरफ से एग्रीकल्चर में नया आने वाला जब आए तो वो जज्बे से आए कि वो अपने भाइयों को ज्वाइन कर रहा है। जब वो जज्बे से ही नहीं आएगा और नेगेटिविटी देख रहा होगा तो फिर वो चीजें मुमकिन नहीं है जो हम फ्यूचर में एग्रीकल्चर के लिए सोच रहे हैं। बर्ड्स की मार्केट सिचुएशन के मुताबिक ब्रीडिंग, होल्डिंग और सेलिंग का प्रॉपर टाइम फ्रेम सजेस्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे पास जी थोड़ा बहुत मैं पता अजीब सा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, भीड़ चाल, यार उसने क्या लगाया हुआ है, इसने क्या लगाया हुआ है, उसने क्या लगाया हुआ है, हम जो है ना वो उस तरफ लग जाते हैं। अच्छा मैंने ओवरऑल अपनी आप मेरी एवरेज पे अगर आएंगे तो आप देखेंगे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं लवर्स को ले लेता हूँ, वैसे तो वैरायटी ऑफ बर्ड्स की अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ओवर पीरियड की है और एंजॉय की है और कर भी रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो लवर्स के केस में मेरे पास रोजी पसनाटा फिशरीज तीनों वैरायटीज़ के अंदर तमाम बर्ड्स मौजूद हैं, तमाम लोकेशन की बर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। अच्छा अब कौन सी नहीं मौजूद है, ये मैं नए फैंसियर्स के लिए कह रहा हूँ या एग्जिस्टिंग फैंसियर्स के लिए कौन सी नहीं मौजूद है। मैंने अपना एक एम बनाया हुआ है कि यार मेरी रेंज है जो वो है भाई 1 लाख रुपए। 1 लाख की रेंज के अंदर जैसे जैसे म्यूटेशन आती रहेगी मैं उसको अपने शेड के अंदर लाता रहूँगा। मैं कोई जाके 8 लाख रुपए की, 9 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की बर्ड नहीं लाऊंगा, क्योंकि जब मैं लाऊंगा तो मैं किसी को कैसे दूंगा, नए फैंसियर्स को या कोई आगे बढ़ रहे हैं तो उनको उनके घर में जाके वो अल्लाह के पास चली जाएगी। तो मुझे क्या करना है, वो 1 लाख की बर्ड से 8 लाख की बर्ड को प्रोड्यूस करवाना है, तो मैं स्पिरिट्स को यूज करूंगा, मैं अपनी वर्किंग करूंगा, मैं कोई जल्दी नहीं करूंगा। और वो 1 लाख रुपए भी मैं क्यों खर्च करूंगा, कब खर्च करूंगा सर, मैं उस वक्त खर्च करूंगा जब मैं अपनी पिछली बर्ड्स को
प्रोसीड आएगी, मैं अगला स्टेप लूंगा। तो इंशाअल्लाह ताला इन्वेस्टमेंट एक दफा होती है, बार बार इन्वेस्टमेंट इस एग्रीकल्चर के अंदर अगर आप लोग करेंगे, ये एग्रीकल्चर में आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। आपने अपनी ब्रीडिंग कैपेसिटी को बेहतर करना है, एसओपीज को बेहतर करना है। इंशाअल्लाह हम अपने तमाम ग्रुप्स में, जब से मैं वॉइस कर रहा हूँ, मैं यही बात भाइयों को समझाता हूँ। आज मैंने एग्जाम्पल अमाउंट देके बता दिया, लेकिन ये मेरा अमाउंट है, मेरी रेंज है। कुछ भाइयों के पास शायद भाई हाई रेंज की बर्ड हो, वो सेल करते हैं, उसको 4 लाख की बर्ड हो, वो 4 लाख की बर्ड सेल करेंगे तो वो 6 लाख की बर्ड पे जाएंगे ना, वो उन्होंने जाना है। अब अगर यहाँ पे हम बेच रहे हैं पेड़ फेलो 20,000 का और जाके हम लेकर आ जाते हैं पेड़ फेलो ऑफलाइन 1.5 लाख रुपए का, और वो अल्लाह के पास चले जाते हैं तो कहते हैं भाई वो फैंसे ने यूं कर दिया, बर्ड यूं दे दी, ये हो गया, वो हो गया। उस लॉस को कवर करने में आपको पूरा साल लग जाता है अपनी आईडी के अंदर। तो जाहिर बात है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम गाइड कर रहे होते हैं इंशाल्लाह, और अब और डिटेल में गाइड करेंगे कि यार किस तरह इसको करना है अचीव। रेट कोई भी मेंटेन नहीं रख सकता, ये रेट आप ही मेंटेन रख सकते हैं। आप जब वैल्यू देंगे अपनी बर्ड को, क्वालिटी बर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपने बायर्स को समझाएंगे कि यार मैं ये डिमांड क्यों कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला आपसे वो बर्ड उस रेट पे देंगे। बाकी कंपटीशन इंशाल्लाह ताला वो तो रहता ही है कि अगर कंपटीशन नहीं है तो मजा ही नहीं है ना। बिजनेस में भी कंपटीशन है, बर्ड्स फार्मिंग में भी कंपटीशन है, ये शोज भी कंपटीशन है। तो हेल्दी कंपटीशन करें, हेल्दी कंपटीशन, शोज को बुरा नहीं करें, शोज में आए, अपनी बर्ड्स को देखें और अपनी बर्ड्स को जिताएं इंशाल्लाह ताला। और अल्लाह करीम के तरफ से उम्मीद करता हूँ कि आने वाले तमाम शोज में आप सब भाइयों ने बेहतरीन तरीके से शिरकत करनी है और इसको एक बेहतरीन इवेंट बनाना है। जहाज वालों, एक्सपोर्टर्स, ट्रेडर्स और फीडर्स को लूप में लेकर प्रॉपर रेट्स फाइनलाइज करवाना है। एक्चुअली देखें, मैंने जैसे कहा कि जब हम ब्रांड बना देंगे ना यार पार्क तो पार्क एक ब्रांड है, और पर एक ब्रांड है, और पर का ये रेट है, और पर की ये कॉस्ट है, इस कॉस्ट के बाद और पर का ये रेट है, नेस्ले का ये रेट है, नेस्ले की कॉस्ट है, नेस्ले का एक रेट है। पार्ब्लू एग्जाम्पल के तौर पे आपका एक ब्रांड है, तो इस पार्ब्लू के ब्रांड के अंदर किस तरह की वेरिएशन हो सकती है, जिस तरह प्रोडक्ट की क्वालिटी में वेरिएशन होती है, लोगों का रिलैक्सेशन होती है। किसी का दिल चाहता है यार मैं डॉक्टर सऊद से जाके अपनी बर्ड लाऊं, किसी का दिल चाहता है मोहसिन जमान पाशा के पास, किसी का दिल चाहता है अदनान यूनुस भाई के पास। तो जिसका जहां दिल चाह रहा है तो एक्चुअली वो उसको ब्रांड समझ रहा है सबसे पहले, ठीक है। तो एक उन्होंने अपना ब्रांड बनाया है, अब वो ब्रांड उन्होंने क्या इस पे बनाया है कि डॉक्टर सऊद एक ब्रांड है, नहीं जी, उनकी बर्ड्स, आप उनकी बर्ड्स की क्वालिटी को देख के उनकी तरफ जाते हैं। तो एक्चुअली आपने अपने पास वो क्वालिटी ऑफ बर्ड्स रखनी है। मोहसिन जमान पाशा के पास अगर आप जाते हैं तो मोहसिन जमान पाशा के अखलाक से भी जाते होंगे, मोहसिन जमान पाशा की बातों से भी जाते होंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो बर्ड लेकर आते हैं जो बर्ड आपको पसंद आती है, वरना आप उस शेड से वापस आ जाते हैं। तो कोई किसी को कभी भी कोई चीज महंगी सस्ती नहीं देता, ये आप सबका अपना इनिशिएटिव होता है। मैंने जैसे कहा अपनी बर्ड को ब्रांड बनाए, पार्ब्लू को एक ब्रांड बनाएंगे तो पार्ब्लू की वैल्यू होगी। चार वाले या डिस्काउंट ट्रेडर्स कहें या होलसेलर्स कहें, देखें इनका विचारों का ये रोल है कि ये ग्राउंड में बैठे हुए ये आपके लिए बर्ड्स को जमा करते हैं, और आप सब भाइयों के पास इतना टाइम नहीं होता। कुछ फेंसियर्स के पास एक एक करके 100 फेंसियर को महीने के अंदर अपने घर में बुलाएं, उनके साथ टाइम लगाएं, तो उनकी कोशिश होती है वो जाके ये चीज़ें ट्रेडर्स को देते हैं, या बीच में कुछ होलसेलर होते हैं, कुछ भाई होते हैं जो ब्रीडिंग कम ट्रेडिंग भी कर रहे होते हैं, जिनको जाके आप लोग बढ़ते बता देते हैं कि यार ये बड़े मौजूद हैं, आप भाई मेरे पास अवेलेबल है, जैसे उनके पास कोई बायर आते हैं उसको उनसे कोऑर्डिनेट करके दे देते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपने ये समझनी है कि कोई भी एसोसिएशन, कोई भी इदारा जब तक बायर नहीं हो, मैं खुद बाय करूंगा तो मैं कोई रेट दे सकता हूँ, मैं रेट कभी भी इशू नहीं कर सकता पाकिस्तान के लिए, क्योंकि लोग मुझे बोलेंगे भाई आपने ये 100 रुपए का रेट बोला है, अब ये मेरे पास 10 बर्डे हैं, ये 100 रुपए की आप खरीद लें, तो मैं उन बर्डों को नहीं खरीद सकता सर, मैं तो अपने देश में की फिक्र कर रहा हूँ, मतलब मेरे अपने पैसे तो मेरा कहने का मकसद है इसमें आप पहुंचाओ ना करें। इस कोई हर आदमी ये समझे कि कोई भी रेट आप डिटरमिन कर लें, रेट मार्केट फोर्सेज
जनरल रेट मिलता है, स्टार्टिंग रेट फिर आप नेगोशिएट करें, बल्क की बाइंग करें, तो वहाँ पे ये रेट है। तो अब एक्चुअली आपने ये देखना है कि यार कोई भी बर्ड पे हम काम कर रहे हैं या रेट को डिटरमिन कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल रेट को देखें, उस कॉस्ट को देखें, उसके एक्सपोर्ट की जो कॉस्ट है उसके नीचे नीचे आपको सेल करनी है अगर लोकल में सेल और एक्सपोर्ट करनी है वो भी उससे नीचे के रेट पे आपने एक्सपोर्टर से डिस्कशन करनी है और फिर उसको एक्सपोर्ट करनी है। तो इंशाल्लाह ताला मैं ये समझता हूँ कि ट्रेडर्स हैं, रीडर्स हैं, हॉबियर्स हैं, एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर हैं, ये पिलर्स हैं एग्रीकल्चर के। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपना मार्केटिंग डिवीजन भी चाहिए होता है, अपना प्रोडक्शन डिवीजन भी चाहिए होता है, अपना सेल्स डिवीजन भी चाहिए होता है, तो या तो हम एज एन इंडिविजुअल ये चारों काम कर लें। अगर हम ये चारों काम नहीं कर सकते तो जो ये काम कर रहे हैं उनमें से कुछ हिस्सा जो लोग ये कर रहे हैं तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन में आए और उनके मसाइल को भी समझें और उनको बेहतरीन गाइडलाइन प्रोवाइड करें कि यार ये हमारा सेक्टर है, हम आपके साथ इतना करना चाह रहे हैं। अब आप बताएं कि और क्या बेहतरी होगी, आज नहीं होगी, एक साल बाद हो जाएगी, हम अभी आपके साथ हैं, एक साल बाद हम आपसे पूछेंगे कि यार ये बेहतरी क्यों नहीं हुई रेटों के अंदर, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह ताला मिलजुल के अल्लाह करीम के करम से सब भाई ये कोशिशें करेंगे। एक्सपोर्ट मार्केट को देखकर ही म्यूटेशन की फिर हम वर्किंग फ्री गाइड करेंगे तमाम सीनियर इंशाल्लाह। जो एक्सपोर्ट मार्केट हम बेहतर देख रहे हैं वहाँ पे हम देखेंगे और ये जब बातें होती हैं एक्सपोर्ट मार्केट की के लिए तो वहाँ पे एक्चुअली ऑब्वियसली कुछ उन बर्ड्स की बात होती है जो उन्होंने ब्रीड कराना छोड़ दी, जो उनके फैंसियर्स ले, कुछ ऐसी बर्ड्स की बात होती है जो हाई एंड म्यूटेशन है, जो म्यूटेशन के ऊपर वर्किंग्स चल रही है। तो आपने इन चीज़ों को समझना है कि दोनों तरह के लोग होंगे। हमारे पास भी ऑब्वियस जो कुछ उन वर्किंग्स में काम करेंगे, कुछ हाई एंड वर्किंग्स में काम करेंगे। हाई एंड वर्किंग्स वाले जो है वो इंशाल्लाह लोकली भी भाइयों को अच्छी कॉस्ट पे वो बर्ड्स प्रोड्यूस करा के देने की कोशिश करेंगे और ताकि एक्सपोर्ट मार्केट के लिए जो ऑर्डर्स होते हैं उसकी क्वांटिटीज पे कंप्लीट भी किया जाए। ऐसा नहीं है कि हम 4, 5, 6 बर्ड 8 बर्ड बेचने की बातें कर रहे हैं, यहाँ पे 5000 बर्ड्स को फोकस करना है किसी भी वैरायटी ऑफ बर्ड्स को लेके शिपमेंट को, तो इंशाल्लाह उसके लिए क्वालिटी ऑफ बर्ड्स भी जरूरी है। तो इंशाल्लाह ताला इस पर और डिटेल में सब भाइयों से डिस्कशन करेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस से बेस्ट एडवाइस लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे अल्लाह करीम के करम से। बर्ड्स फार्मिंग की प्रॉपर प्रमोशन, तो बर्ड्स फार्मिंग की प्रमोशन तो माशाल्लाह मुसलमान पाशा भाई आए थे शो में और उन्होंने टीवी एक शो देने जा रही है, इसके ने शो दिया था। आगे LSP ने शो दे रहे हैं हमें कोयटा के अंदर और इसी तरह जो है वो PAT पैक जो है वो माशाल्लाह कराची में शो देने जा रही है अपना एनिमेशन। तो अल्लाह करीम के करम से इन सब शो में आए, इनको प्रमोट करें और बेहतरीन रोल प्ले करें। मैं भी सिर्फ ये कहता हूँ कि हम सब मिलकर कोशिशें कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि जितनी उंगलियाँ उठानी है ना 3 मुझ उठाए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मुझ पर उठाएं, बाकी सबको छोड़ दें, अपना काम करने दें। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, आप सब भाइयों को जवाब दें, किसी को कोई चैलेंज है अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि मेरे बैग पे अल्हम्दुलिल्लाह वो सीनियर लोग मौजूद हैं जो मुझे भी रहनुमाई करते हैं, मेरी भी बेहतरीन आप सब भाई हमारे सीनियर रहनुमाई करते हैं और हम मिलजुल के किसी मसले का हल कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जी इज्जत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपनी इज्जतों को भी संभालें और दूसरों की इज्जतों को अपनी इज्जत समझें, सबको अपने दिलों में जगह दें। सब पॉजिटिव काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई 100% नहीं होता, कोई 80% होता है, कोई 70% होता है, कोई 90% होता है, कोई 100% की तरफ हम जब जा सकेंगे जब हम सब मिल सकेंगे, मिलजुल के हम कुछ कर सकेंगे। अगर मैं इंडिविजुअल करूँगा 100% कुछ अचीव कर लूँगा कभी भी मुमकिन नहीं, ठीक है ना जी। तो इंशाअल्लाह ताला ये सेमिनार करने का बेसिकली मकसद आप सब भाइयों को वो पैगाम पहुंचाना था और पाकिस्तान बर्ड ब्रीडर्स एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से और वॉइस ऑफ पाकिस्तान से। और इंशाअल्लाह ताला जैसे मैंने कहा हम जिस तरह तमाम आप भाइयों के साथ भी जुड़े हुए हैं और हमारे तमाम सीनियर फैंसियर्स की रहनुमाई में ही इंशाअल्लाह ताला मिलजुल के आप सब भाइयों के लिए बेहतरीन एग्रीकल्चर के लिए जो है वो प्लानिंग होगी और इंशाअल्लाह आप चेंज देखेंगे। देखें कल्चर का चेंज आपने 1 साल में देखा अल्हम्दुलिल्लाह और तकरीबन 1 सालों से ही हमने आप समझे कि जब हालात डाउन की तरफ जाना स्टार्ट हुए तो APPA ने अपना रोल और बढ़ाना स्टार्ट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मुश्किल टाइम में नवंबर तो ब्रीडिंग सीजन का हमने शो दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। सेल्स गाला क्वार्टरली बेसिस पे हम लगा रहे हैं जिसमें मिलियन में सेल्स जो है वो हो रही है। उन सेल्स गाला के अंदर हम
हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि यार जो इंडिविजुअल या ब्रीडर है वो एक्चुअली प्रॉपर ब्रीडर हो, उसका प्रोफाइल है क्या, उस प्रोफाइल से अगर बढ़ जाएगी तो इंशाल्लाह ताला वो बढ़ आगे रिजल्ट भी देगी। अगर आपने इस बात को भी समझना है कि 1-2 साल के अंदर तो आप बढ़ जाओगे, तो समझते हैं आप 1-2 साल में आगे आप अपनी बर्ड को कभी भी सीनियर ब्रीडर से कंपेयर नहीं कर सकते। उन्होंने बैक पर 4-5 साल की वर्किंग की भी है, तो आपने 4-5 साल की वर्किंग करनी है अपनी, तो इसको प्लान लेके चले 50% कमर्शियल, 50% या 30% या 20%, लेकिन अपनी रेंज में। मैं कभी भी नहीं कहता कि हाई एंड बर्ड पे काम करना है किसी इंडिविजुअल को, पिछली बर्ड्स को सेव करें, आगे बढ़े। मैं सेरिकल्चर में तमाम, जैसे मैंने कहा कि वैरायटी ऑफ बर्ड्स पे काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कर चुका हूँ, और सिर्फ इसीलिए कामयाब हूँ और सकून में हूँ। और आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पिछली बर्ड को सेल करके अगली बर्ड पे काम करो। अगर सेल नहीं हो रही तो किसी को वो बर्ड देके उससे दूसरी रोटेशन की बर्ड अपने शहर के अंदर लाए, जो आप वर्किंग में करना चाह रहे हैं। मिलजुल के ही एग्रीकल्चर आगे बढ़ता है। हम अब कोशिश करके बर्ड्स एक्सचेंज का ग्रुप भी बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि कुछ वर्किंग किसी भाई ने अच्छी की हुई है और किसी दूसरी रोटेशन में किसी और भाई ने की हुई है। तो ओवरऑल आपसे भाइयों का कोऑर्डिनेशन हो, आप लोग आए वहाँ पे अपने प्रोफाइल्स को शो करें, अपनी बर्ड्स को शो करें, तो एक्सचेंज से भी बहुत सारी चीजें आगे बढ़ती हैं। सिर्फ सेल ही ऑब्जेक्टिव नहीं होता, क्योंकि सेल करके तो बहुत सारे बिल्डर्स भूल जाते हैं। एक्सचेंज में ये होता है कि उनकी बात आपके घर में होती है और हमारी बात उनके घर में होती है। तो ये भी एक मेरे ज़हन में है कि यार इससे भी बहुत चीज़ें जो है ना इंशाअल्लाह ताला मोहब्बत भी बढ़ेगी और बेहतरी भी आएगी। अल्लाह करीम सबको अपने खास करके साए में रखेगी, बरकत फरमाए, आमीन।